السلام علیکم ناظرین، روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز مسجد الحرام کے سوا تمام مسجدوں میں نماز سے 1000 درجہ زیادہ افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض پر ہوگا۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیڈ لائنز پر۔ زرعی میدان میں ریاست نے ترقی و کامیابی کے قائم کی مثالیں۔ قبل میں متحدہ ریاست میں حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کے سبب ہوئی برقی کی قلت۔ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینواس ریڈی نے ورنی منڈل کے سری نگر گاؤں کا دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا کیا آغاز۔ سی ایم کے سی آر کی کارکردگی سے متاثر ہو کر مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین نے ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کے ہاتھوں کی TRS میں شمولیت حاصل۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر محکمہ بلدی کی جانب سے خصوصی انتظامات عمل میں لائے جائے۔ ڈپٹی میئر ادریس خان و کارپوریٹرز نے انچارج بلدی کمشنر و ایڈیشنل کلکٹر سے ملاقات کرتے ہوئے کی نمائندگی۔ منڈل سطح میں مسلمانوں کی نمائندگی و مسائل کے حل کے لیے نندی پیٹ مسلم کمیٹی کے سالانہ انتخابات متحد ہو کر ہی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ نو منتخب صدر و اراکین کا پیغام۔ خواتین کی مختلف شعبے حیات میں خدمات کی ستائش کے لیے منعقد کردہ استری شکتی ایوارڈ تقریب بحیثیت مہمان خصوصی متحدہ ضلع MLC کے کویتا نے کی شرکت۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینواس ریڈی نے دورہ کرتے ہوئے ورنی منڈل سری نگر دیہات میں کئی ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینواس ریڈی نے ورنی منڈل سری نگر دیہات میں قیام عمل میں لائے گئے دیگر ترقیاتی کاموں کے سنگ بنیاد پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے پہلے مرحلے کے طور پر سری نگر دیہات میں واقع امبیڈکر مجسمے پر پھول مالائیں پہناتے ہوئے بھرپور خراج عقیدت پیش کی اور باتزا انہوں نے ڈبل بیڈروم مکانات، SC ڈنڈورا کمیونٹی عمارت کی تعمیر، گورنمنٹ جنرل فنکشن ہال کی تعمیر اور گورنمنٹ اسکول میں زائد کمرے جماعت کی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد رکھتے ہوئے سری نگر دیہات میں DVR چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے قیام عمل میں لائے گئے منرل واٹر پلانٹ اور جدید طور پر تعمیر کردہ ڈبل بیڈروم مکانات کا افتتاح عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں مختلف ترقیاتی فلاحی اسکیمات کے تحت تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو فائدہ پہنچانے کا اظہار کیا۔ ఇంతవరకు పరిపాలించినటువంటి ప్రధానమంత్రులు మొదలుకుంటే ఢిల్లీని పరిపాలించినటువంటి గత ముఖ్యమంత్రుల యొక్క పాపమే ఈరోజు ఢిల్లీ నగరానికి శాపంగా తయారైంది। మనకు తెలంగాణ తెచ్చుకున్న నాడు కూడా మన పరిస్థితి అదే। తెలంగాణ తెచ్చుకున్న నాటికి తెలంగాణ ప్రజల అవసరం ఎంత అంటే వ్యవసాయదారుల కరెంటు మోటార్లు కానీ, డొమెస్టిక్ ఇళ్ల అవసరాలు కానీ, కమర్షియల్ వ్యాపార వర్గాలు కానీ, పారిశ్రామిక వర్గాలు కానీ కడుపు నిండా కరెంట్ ఇవ్వాలంటే తెలంగాణ తెచ్చుకున్న తొలి దశల రోజులలో 7800 మెగావాట్లు కావాలి। మనకు ఆనాడు అందుబాటులో ఉంది 4000 అంతే। 4000 మెగావాట్లు ఉంది। తెలంగాణ కరెంట్ రాదు, పంటలు వండయి, మోటార్లు కాలిపోతాయి, పంటలు ఎండిపోతాయి అని శాపం పెట్టింది। محترمہ کے کویتا ہما کے شخصیت کی مالک و سیاسی صلاحیتیں جاہر میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، وہیں غریب مستحق افراد کی مدد میں ہمیشہ پہل کرتے ہوئے بہترین چھاپ چھوڑنے میں ہوئی کامیاب۔ متحدہ ضلع نظام آباد سے کے کویتا MLC کے طور پر منتخب ہونے کے بعد قانون ساز کونسل میں جاری اجلاس کے دوران صدیوں سے تعطل کا شکار MPTC ZPTC کونسلر کارپوریٹرز کے مسائل کو حکومت کے علم میں لاتے ہوئے شہری ادارہ جات مقامی کی نمائندگی کرنے والے منتخب عوامی نمائندوں، کونسلرز، کارپوریٹرز، چیئرمین بلدیے، میئر بلدیے کی ماہانہ مشاہدے میں اضافہ کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا۔ اسی طرح
سے کہ कविता ने गरीब मुस्तहक अफराद की मदद में वो हमेशा एक कदम आगे रहती है और साबिका रुकने पार्लियामेंट के तौर पर कई तरक्याती इक़दाम अंजाम देते हुए नए कलेक्ट्रेट की इमारत तामीर की गई। तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवान को रोजगार से मरबूत करने के लिए IT हब की तामीर के अलावा NRIs खलीजी ममालिक में फंस जाने वालों की वापसी के लिए के कविता ने खुसूसी तैयारी का इंतजाम किया। रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी की हरकियाती खिदमात से मुतासिर होकर वेलपुर मंडल रमन्नापेट से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस BJP व BSP पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। चीफ मिनिस्टर KCR की कामयाब तरीन क़यादत में मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात से मुतासिर होकर आज वेलपुर मंडल मुआज़िर रमन्नापेट से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस BJP BSP पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी में TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने पार्टी में शामिल होने वाले कायदीन को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासत तेलंगाना तरक्की के जानिब गामज़न होने का इजहार करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR के ज़ेर क़यादत गरीब व मुस्तहक अफराद के लिए मुनफरिद स्कीमात का आगाज करते हुए इन्हें रूबे अमल में लाने के लिए न सिर्फ ओहदेदारों को मुतहरिक किया जा रहा है बल्कि हुकूमत से मुताल्लिक़ स्कीमात का अवाम में शऊर बेदारी अमल में लाने का इजहार किया। जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर महकमे बल्दी की जानिब से खुसूसी इंतजामात अमल में लाने के मुतालबे के साथ डिप्टी मेयर इदरीस खान व सदर मजलिस फ्लोर लीडर शकील फाजिल व मजलिस कॉर्पोरेटर्स ने की एडिशनल कलेक्टर व इंचार्ज म्यूनसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा से मुलाकात व इन्होंने दिया मुस्बित रद्द-ए-अमल। इस माह की 19 तारीख को मुनाकिद होने वाले जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात के मद्देनजर आज डिप्टी मेयर इदरीस खान की क़यादत में सदर मजलिस व बल्दिया फ्लोर लीडर निजामाबाद शकील फाजिल व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर्स ने इंचार्ज बल्दी कमिश्नर व एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा से मुलाकात करते हुए ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर महकमे बल्दी की जानिब से खुसूसी इंतजामात अमल में लाते हुए कचरे की निकासी, सफाई, सड़कों की मरम्मत व जुलूस के रास्ते की निशानदही करने व खुसूसी लाइट्स का इंतजाम करते हुए बोधन रोड पर क़याम करदा सेंट्रल लाइट्स को भी खुसूसी तौर पर मरम्मत करते हुए आगाज करने के लिए नुमाइंदगी की। इसी तरह महकमे बल्दी की जानिब से पानी का इंतजाम करने के लिए भी नुमाइंदगी, जिस पर बल्दी इंचार्ज कमिश्नर ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए खुद तमाम इंतजामात को करीब रहकर अंजाम देने की तयक़ुन दहानी करवाई। इस मौके पर इनके हमरा कॉर्पोरेटर अफसर मोहम्मद मुस्तहसिन, मोहम्मद अली बागबान, मोहम्मद रियाज अहमद, मोहम्मद नसीर, सैयद रफीउद्दीन, मोहम्मद मुनव्वर अली, माउन कॉर्पोरेटर मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद अरशद अली व दीगर मौजूद थे। मैं सबसे पहले निज़ामाबाद की आवाम को मेरी तरफ से और डिप्टी मेयर की तरफ से, तमाम ही कॉर्पोरेटर्स की तरफ से, मोहबान मजलिस की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि 19 तारीख को जो जश्न मिलाद-उन-नबी का जुलूस है उसमें पुरअमन तरीक़े से मुज़ाहरा किया जाएगा और हमारी भी ख्वाहिश है कि जुलूस मोहम्मदी वसी पैमाने पे निज़ामाबाद से अपना एक किरदार और एक मिसाल पेश करे और ये चीज़ गुज़िश्ता कई सालों से होते आ रही है और इस ज़िम्मन में जब से हम लोग म्यूनसिपाल्टी में ज़िम्मेदारी हमारे आई तभी से हम ये जुलूस मोहम्मदी को जहाँ से भी गुज़रता है उसके रास्तों को और जहाँ तक हो सकते म्यूनसिपाल्टी से हम उसमें हमारा हिस्सा अदा करने की कोशिश करते रहते हैं। इसी ज़िम्मन में आज कमिश्नर म्यूनसिपल मैडम से भी मुलाकात हुई। रास्तों की सफाई हो या स्ट्रीट लाइट्स हो और सुबह पानी की जो बौछार मारी जाती है ताकि डस्ट वगैरह ना उठे, पब्लिक की सहूलत के लिए हर मुमकिन हम काम करने की कोशिश करेंगे। शहर के पुलिस परेड ग्राउंड में महकमे पुलिस के ज़ेरे निगरानी क़याम अमल में लाए गए बदकमा तकारीब में मियां नीतू किरण व कलेक्टर व कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया के शरीकी हयात ने शिरकत करके फूलों से सजे बदकमा त्यौहार को कामयाब बनाया। जिले निजामाबाद के पुलिस परेड ग्राउंड में महकमे पुलिस के ज़ेरे निगरानी क़याम अमल में लाए गए बदकमा तकारीब में मियां नीतू किरण और कलेक्टर व कमिश्नर ऑफ पुलिस के शरीकी हयात और ACP उषा विश्वनाथ, गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट प्रतिमा राज व महकमे पुलिस में खिदमात अंजाम देने वाले ख़वातीन ने शिरकत करते हुए बदकमा तकारीब को जोश खरोश के साथ मनाया।
celebration is going great. Everybody is here with like they are in beautiful attire and everybody is looking so beautiful. Looking forward for this program. Definitely feeling great. It's a ladies program and we are here to celebrate Ma Durga festival. So really excited and really happy to be part of it. ఈరోజు మనకి నిజామాబాద్ పట్టణంలో ఈ పోలీస్ గ్రౌండ్లో బతుకమ్మ సంబరాలు చాలా ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఇక్కడ అందరూ పోలీస్ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు కానీ వాళ్ళే స్వయంగా కానీ చాలా చక్కగా రెడీ అయ్యి ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొనడానికి అందరూ ఇచ్చేశారు. ఈ నిజామాబాద్ అందరికీ కూడా ప్రేక్షకులందరికీ కూడా దసరా శుభాకాంక్షలు. हैदराबाद के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किदा तेलंगाना चैम्बर ऑफ इवेंट्स इंडस्ट्री के 4थे महिला शक्ति अवार्ड प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर कानून साज कौंसिल के कविता ने की शिरकत. मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने हैदराबाद के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद तेलंगाना चैम्बर ऑफ इवेंट्स इंडस्ट्री के 4थे महिला शक्ति अवार्ड प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कहा कि ख़वातीन को बतौर सनअतकार की हैसियत से तरक्की करने के लिए माली मदद फराहम करने का इजहार किया. वो इस मौके पर इन्होंने मिशन भगीरथा चीफ इंजीनियर विनोहा देवी को स्त्री रत्न अवार्ड, मिशन भगीरथा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पुष्पलता देवी को स्त्री मूर्ति अवार्ड और इरिगेशन डिपार्टमेंट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनुषा को स्त्री शक्ति अवार्ड हवाले किया. इस प्रोग्राम में MLC वानी देवी, CM सेक्रेटरी IAS व दीगर अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की. This is a wonderful gathering because contribution that we have contributed today are making towards the progress of Telangana and as a country brilliant. And any such an function to felicitate them contribute much more to the development of the state and the country. ఇవాళ ఒక మహిళని మనం దగ్గరికి తీసుకొని అవార్డు ఇచ్చామంటే ఆ ఒక్క మహిళకే కాదు మొత్తం కుటుంబాన్ని కూడా మనం ఎంకరేజ్ చేస్తాం. नंदीपेट मंडल NTR कॉलोनी में वाक़ई मस्जिद में कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद हुसैन की सदारत में मुस्लिम मंडल कमेटी के सदर व नायब सदर का इंतखाब अमल में लाया गया. नंदीपेट मंडल NTR कॉलोनी में वाक़ई मस्जिद में कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद हुसैन की सदारत में मुस्लिम मंडल कमेटी के सदर व नायब सदर का इंतखाब अमल में लाया गया, जिसमें नंदीपेट मंडल सदर के तौर पर शेख कलीम व नायब सदर की हैसियत से सैयद कलीम और जनरल सेक्रेटरी के तौर पर अकबर का इंतखाब अमल में लाया गया. इस मौके पर नौमुंतखब सदर शेख कलीम ने खिताब करते हुए कहा कि अवाम से मुताल्लिक मसाइल को हल करते हुए इनकी भरपूर मदद करने का इजहार किया. इस प्रोग्राम में कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद हुसैन, TRS मुस्लिम सदर शेख पाशा, TDP मुस्लिम मंडल सदर जावेद, TRS सोशल मीडिया वर्कर शबीर अली, मंडल से मुताल्लिका मौज़ूआत के मुस्लिम सदर व नायब सदर व दीगर ने शिरकत की. మండల మైనార్టీ కమిటీని ఎన్నుకోవడం జరిగింది. కలీంబేని మండల ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. తాను ఇంతకుముందు 4 పర్యాయాలు నందిపేట మసీద్ కమిటీకి చైర్మన్గా ఉండే. ఇప్పుడు కూడా ఆయనకు ఏ అవసరం వచ్చినా ఏ రాత్రి పగలు ఏదైనా కూడా ఎప్పుడైనా కానీ ఫోన్ చేసినా కూడా పని చేసే మనిషి, పాత మనిషి. మా కలీంబే కూడా చాలా మంచి వర్క్ చేసిండు. उसके बाद जो भी जिसके मसाइल है, जो भी आप है हर महीना या जैसा भी आप बोलेगा उस तरीके से या 2 महीने या 1.5 महीने की एक मरतबा मीटिंग कॉल करेंगे. कॉल करके हर एक के जो भी प्रॉब्लम्स है, मेन पहले वहाँ का जो है सदर मस्जिद के नायब सदर, उसके बाद उनके साथ अवाम जो भी आएंगे उनको पूरों को लेके अपन जिसके भी जो मसाइल है अपन जो है सो हल करेंगे. और डेवलपमेंट के ताल्लुक से भी जो है सो सबको मिला लेके नंदीपेट के हेडक्वार्टर नहीं, पूरे मंडल के अपने जितने भी 23 मुकाम पॉपुलेशन है अपना, और 1-2-3 गाँव में भी कम है मकान, मगर 23 गाँव में जो है ज़्यादा है अपना पॉपुलेशन. उन लोगों के जो भी हर मसाइल अपन जो भी है लेके सबकी मर्जी से सबको लेके चलेंगे. और गवर्नमेंट से होने दो या अपना प्रॉब्लम हो दो, MD ऑफिस, MR ऑफिस, पुलिस स्टेशन, जो भी मसाइल है वहाँ की कमेटी पहले उनको चाहे वो लोग नहीं हो रहा मसला, भाई आप लोग आना बोले तो वो टाइम पे अपन जो है जब भी है जरूरत है जब अपन पूरा मसला हल करेंगे उनका. कहाँ हुए हमारे नाजायज बच्चों पे केस हुए थे, उसमें भी मैं 2 गाड़ियाँ लेके 2 कारें लेके फिरा और बेल लिए हम बाज़ाब्ता जो भी फिरे. नहीं तो मैं सदर को हार गया बोल के जैसे माया सो के नहीं, यहाँ रहे तो हेडक्वार्टर में बाज़ाब्ता अपने कौम का छोटा भी इशू हुआ तो उसको अपन इन्वॉल्व करते हैं. अभी भी जो भी केसेस आ रहे मेरे पास पंचायत आ रहे, एक ऑफिस रख लिया, मैं सदर रहते, मेरे कारोबार कुछ भी नहीं है वो दुकान के. अल्लाह का फजल है, आने के बाद किसी को भी काम भी है तो बोले थोड़ी देर. निजामाबाद मियां नीतू किरण के हाथों खवातीन में बदकमा साड़ियों की तकसीम.
निजामाबाद मियां नीतू किरण ने शहर के डिवीजन नंबर 46 पोचमा गली में एससी मला संगम के ज़ेरे निगरानी मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत करते हुए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फराहम करदा बदकमा साड़ियों की खवातीन में तकसीम अमल में लाते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी दशहरा बदकमा त्यौहार के मौके पर बिला मजहब व मिलत की खवातीन में मुफ्त साड़ियों की तकसीम अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में इनके साथ टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन राजेश, नीलागिरी राजू, महिला संगम के खवातीन ने शिरकत की। अकाबिर के खून पसीने से परवान चढ़ने वाली जमात जमीयतुल माहिन मेंबर साथी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले जमात को मुस्तहकिम करे। सदर जमीयतुल माह निर्मल मुफ्ती सैयद कलीमुद्दीन कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल माह मुफ्ती अब्दुल अलीम फैसल कासमी व दीगर जिम्मेदारान ने अपने एक सहाफती बयान में कहा कि जमीयतुल माहिन हिंदुस्तानी मुसलमानों की ऐसी नुमाइंदा तंजीम है जिसकी दीनी मिली कौमी मुल्की और अवामी खिदमत 100 साल को मुहित है। इसने जिस जुर्रत व इस्तिक़लाल के साथ मुल्क व मिलत के मसाइल हुकूमत के सामने रखे और हिंदुस्तानी मुसलमानों की दीनी मिली शनाख्त के लिए जहद मुसलसल की है, वो मिलत की तारीख का नुमाया उन्वान। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद हर नाजुक और पुरआशुब दौर में जमीयतुल माहिन ने मिलत को अपने तशख़्ख़ुस के साथ मुल्क में बावक़ार जिंदगी गुजारने का हौसला दिया है। साथ ही इसने मुल्क में सेकुलरिज्म और जमहूरी आइन के निफाज में कलीदी किरदार अदा किया है, जिसके तहत अखिलतों को आइनी तौर पर बराबरी के हुकूक हासिल है। फ़िरका परस्त और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में घुसे फ़िरका परस्त अनासिर के अज़ाइम व इक़दामात का मुकाबला किया है। इन्होंने मुसलमानान हिंद बिलखुसूस शहर निर्मल और इसके इतराफ इकनाफ के तमाम मुसलमानों से अपील की कि वो जमीयतुल माह के मेंबर बने। किसी भी तंजीम जमात का वजूद इस्तेहकाम इसकी मेंबर साजी पर मुनहसिर है, लिहाजा मुसलमान जमीयतुल माह के मेंबर बने ताकि जमात ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो। चार मीनार के 430 साल मुकम्मल हो गए। दुनिया भर में मशहूर शहर हैदराबाद की तारीखी इमारत चार मीनार की तामीर हुए 430 साल मुकम्मल हो गए। कहा जाता है कि 9 अक्टूबर 1591 को चार मीनार की तामीर हुई थी, जो इस वक्त नए शहर हैदराबाद में तामीर होने वाली पहली इमारत थी जिसे सुल्तान कुली कुतुब शाह ने बसाया था। अगर जबकि चार मीनार की तामीर से मुतालिक मुख्तलिफ बातें की जाती है, जैसे कहा जाता है कि प्लेग के खात्मे की यादगार के तौर पर इस शानदार इमारत की तामीर की गई और कहा जाता है कि इस्लाम के 1000 साल की यादगार के तौर पर इसकी तामीर की गई। और ये भी कहा जाता है कि सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह की माशूका भागमती के घर की वजह से भी यहाँ चार मीनार की तामीर हुई, जो इस इलाके में वाक़ था। इसी तरह इसमें कई बातें बयान की जाती है। चार मीनार की तामीर का आगाज 1589 में हुआ और इसकी तामीर 2 साल में मुकम्मल हुई। इसका नक्शा ईरान के आर्किटेक्ट मीर मोहम्मद इस्त्रावादी ने तैयार किया था। रवायत ये भी है कि 1687 में मुगल शहंशाह औरंगजेब ने चार मीनार को निस्तो नाबूद कर दिया होता, लेकिन जब इन्हें ये बताया गया कि इसके ऊपर एक मस्जिद है तो इन्होंने इस इरादे को तर्क कर दिया था। हफ्ते को शहर में शदीद बारिश होने के बावजूद कई लोगों ने इस दिन को याद किया, जैसे रंजन चोपड़ा, जिन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया हैप्पी बर्थडे टू दी सिग्नेचर ऑफ हैदराबाद चार मीनार। ट्विटर पर हैदराबाद के अक्षय ने ट्वीट किया कि हैप्पी बर्थडे हैदराबाद, इस शहर ने मुझे हर चीज दी है जिसका मैंने बचपन से ख्वाब देखा था। जारिया साल दिन दहाड़े 31 खुफा शिकनी की वारदात, रात में 181 सरखे की वारदातें। क्या सरखे की वारदातों की रोकथाम पुलिस के बस की बात नहीं। जिले में चोरी की वारदातों में बेहद इजाफा हो चुका है। बैरूनी रियासत में चोरों की गैंग निजामाबाद का रुख करते हुए चोरी की वारदातें अंजाम दे रही हैं। जिले में हुई 800 से ज्यादा चोरी की वारदातों में 250 वारदातों में महाराष्ट्र के चोर मुलविस पाए गए। 4 सालों में जिले निजामाबाद में खुफा शिकनी की वारदातों में बेहद इजाफा हुआ है। साल 2018 में जुमला 199 चोरी की वाकयात रोनुमा हुए, जिनमें से 28 चोरियां दिन दहाड़े की गई, जबकि रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए 171 वाकयात रोनुमा हुए। इसी तरह साल 2019 में दिन के उजाले में 32 चोरी की वाकयात पेश आए, जबकि रात में 227 चोरियां हुई। साल 2020 में जुमला 181 चोरी की वारदातें हुई है, जबकि गुज़िश्ता साल कई माह मुकम्मल लॉकडाउन लगा हुआ था। गुज़िश्ता साल दिन में 29 चोरियां और रात में 152 चोरियां हुई है। जारिया साल अभी तक 212 खुफा शिकनी की वारदातें हुई है, जिनमें
31 वाक़यात दिन दहाड़े अंजाम दिए गए। शहर और जिले में सरक़े की वारदातों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। टू व्हीलर, ऑटो और दूसरी गाड़ियों की सरक़े के अलावा मकानात में जेवरात और नकद रकम के सरक़े की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। सरक़े की वारदातों में इजाफा होने पर अवाम में ये सवाल गश्त कर रहा है कि क्या सरक़े की वारदातों की रोकथाम पुलिस के बस की बात नहीं रही। सरक़े की वारदातें अवाम के लिए माली नुकसान के साथ साथ दर्द सर बन गई हैं। ऐसे हालात में तमाम मोहल्लाजात में गश्ती टीम की तश्कील वक्त की अहम तरीन जरूरत बन गई है, क्योंकि सारिकीन हालात और जिंदगी से बेजार होते हैं। इन्हें सिर्फ फायदे की फिक्र रहती है, जिसके लिए वो किसी भी मुकाम पर सरक़े की वारदात अंजाम देने से गुरेज नहीं करते। अगर गश्ती टीम तश्कील देते हुए रात के वक्त मुश्तबा अफराद की सरगर्मियों पर नजर रखी जाती है तो माली नुकसान से बचने का एक जरिया बन सकता है। 7 साल में 324 असमत रेजी के वाक़यात, अवाम में तशवीश। निजामाबाद में मंगल के दिन एक खानगी दवाखाने में पेश आई इज्तिमाई असमत रेजी की सनसनीखेज वारदात में मुलविस 6 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। तुलबा की असमत रेजी करने वालों की नवीन, चंद्रशेखर, भानु प्रताप, एस चरण, गंगाधर और शेख करीम की हैसियत से शिनाख्त की गई है। कल शहर निजामाबाद के पुलिस स्टेशन सिख इलाके में वसीम नामी नौजवान ने 2 कमसन मासूम नाबालिग लड़कियों के साथ जिनसी छेड़छाड़ की। मुलजिम वसीम को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए रिमांड भेज दिया। वसीम के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। शहर और जिले के कई मुकामात पर रात के वक्त गैर कानूनी तिजारत और सरगर्मियों की वजह से जराइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है। असमत रेजी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। ऐसा मालूम हो रहा है कि जराइम पेशा अनासिर के दिल से पुलिस का खौफ निकल चुका है, जिसका खामियाजा आम अवाम को भुगतना पड़ रहा है। जराइम पेशा अनासिर रात के वक्त असमत रेजी, शराबनोशी, स्मगलिंग, चोरी, डकैती जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे। पुलिस की पेट्रोलिंग में कमी या पुलिस स्टेशनों में अमले की किल्लत की वजह से जराइम पेशा अनासिर का खिला खमा नहीं हो रहा है। मुजरिमों के जहन में ये बात पुस्त हो चुकी है कि पुलिस पकड़ेगी, जेल जाएंगे, रिहा हो जाएंगे। पुलिस के हाथों सजा न मिलने से मुजरिम बेखौफ हो चुके हैं। तेलुगु फिल्मों में लव स्टोरी और रेप के सीन इंतहाई सनसनीखेज बताए जा रहे हैं। हीरो और हीरोइन के दरमियान इंतहाई फहश मनाजिर के अलावा गुंडा नासिर के सीन में भी इंतहाई फहश पाए जा रहे हैं। रास्ते तौर पर कॉलेज में जेर तालीम तुलबा और तालिबात पर इन तेलुगु फिल्मी सीन के खतरनाक असरात हो रहे हैं और असमत रेजी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। तेलुगु सीन्स बोर्ड इंतहाई गैर जिम्मेदार हो चुका है। गुज़िश्ता 7 सालों में असमत रेजी और छेड़छाड़ के जिले में 324 वाक़यात हुए हैं। 2015 में 37 वाक़यात मंजर-ए-आम पर आए। इसी तरह 2016 में 38 वाक़यात रूनुमा हुए। 2017 में 52 वाक़यात दर्ज किए गए। साल 2018 में 77 वाक़यात, साल 2019 में 57, गुज़िश्ता साल 2020 में 34 वाक़यात हुए। जारिया साल अभी तक ख़वातीन और नाबालिग लड़कियों के जिनसी हरासानी के 34 वाक़यात मंजर-ए-आम पर आए हैं। हाल ही में जिले में 10 दिन के अरसे में असमत रेजी के 2 वाक़यात हुए और इसी इज्तिमाई असमत रेजी में शामिल है। केसों में इजाफे से जिले की अवाम में तशवीश का इजहार किया जा रहा है। नेज़ हुकूमत ने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शी टीमें तश्कील दी है। निर्भया जैसे कई सख्त क़वानीन पोस्को लड़कियों के लिए कानून नाफिज किए गए, ताहम जारियत में कोई रुकावट नहीं है। 57 साल उम्र के अफराद के लिए वजीफा दरख्वास्तों के इदखाल की 30 अक्टूबर तक मोहलत। तेलंगाना में 57 साल उम्र के अफराद के लिए खुशखबरी है, क्योंकि हुकूमत ने पेंशन के लिए दरख्वास्तों के इदखाल की तारीख में 30 अक्टूबर तक तौसी कर दी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने असम्बली इजलास में पेंशन के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की मोहलत में 15 दिन तौसी का तयख्खुन दिया था। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार को हिदायत दी गई, जिसके बाद बाकायदा अहकामात जारी करके ओहदेदारों को 30 अक्टूबर तक 57 साल मुकम्मल करने वाले अफराद से दरख्वास्तें कबूल करने की हिदायत दी गई। वाज़ेह है कि हुकूमत ने पेंशन के लिए उम्र की हद को घटाकर 57 साल कर दिया और स्कीम से मुतालिक मालूमात की कमी के नतीजे में बेशतर अफराद दरख्वास्तें दाखिल करने से महरूम थे। इस पर तवज्जो दहानी के बाद चीफ मिनिस्टर ने 15 दिन की तौसी का तयख्खुन दिया था। 57 साल वाले अफराद पेंशन के लिए मी सेवा मराकिज पर दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। महकमे पंचायत राज सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया ने TSTS के मैनेजिंग डायरेक्टर वेंकटेश्वर राव को हिदायत दी कि दरख्वास्तों की 30 अक्टूबर तक वसूली के इंतजाम किए जाएं। महकमे जिले निजामाबाद सेहत में तकर्रुरात के लिए दरख्वास्तें मतलूब।
जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने अपने एक सहाफती इलामी में जिले महकमे तीव्र सेहत ऑफिस निजामाबाद में कॉन्ट्रैक्ट असास पर अंडर NHM 8 स्टाफ नर्सों की जायदादों पर तखर्रुरात के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। BSc नर्सिंग GNM अहलियत वाले मेटर्निटी वार्ड में कम से कम 2 साल खिदमत का तजुर्बा वाले उम्मीदवार 15 अक्टूबर तक दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। दरख्वास्त फॉर्म और गाइडलाइंस वेबसाइट से डाउनलोड करते हुए फॉर्म की खानापुरी के जरिए महकमे जिले तीव्र सेहत ऑफिस निजामाबाद में अयाम कार की कारकर्दगी के दौरान सुबह 10:30 तक शाम 5 बजे तक दाखिल कर सकते हैं। राज्यसभा मेंबर जोगिनीपल्ली संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत अदाकार सिद्धार्थ व अदाकारा अदिति राव ने जुबली हिल्स के JRC कन्वेंशन सेंटर की शिरकारी की। राज्यसभा मेंबर जोगिनीपल्ली संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत नई फिल्म महासमुद्रम के अदाकार सिद्धार्थ व अदाकारा अदिति राव, डायरेक्टर जय भूपति और राव रमेश ने जुबली हिल्स में वाक़ JRC कन्वेंशन सेंटर में पौधे लगाते हुए कहा कि ग्रीन इंडिया चैलेंज मुहिम हरकियाती MP संतोष कुमार की करोड़ों की तादाद में पौधों की शिकारी के जिम्मे में एक तहरीक बन चुकी है और दूसरों को भी हिस्सा लेने की तरगीब देते हुए कहा कि इस अहमियत के हामिल प्रोग्राम को तिजारत से मुंसलिक बगैर पार्लियामेंट ग्रीन इंडिया चैलेंज के मौजूद जय संतोष कुमार की सब्जा जात के फरोग के लिए की जाने वाली कोशिश नाकाबिले फरामोश है। उन्होंने कहा कि नई फिल्म महासमुद्रम की रिलीज के पेश नज़र एक अच्छे प्रोग्राम को करने के मकसद के तहत ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत पौधे लगाने का इंकशाफ किया। डिचपल्ली मंडल मौजे घनपुर में बदकमा तकारीफ का बड़े पैमाने पर इनेकाद। डिचपल्ली मंडल मौजे घनपुर में बदकमा तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाते हुए मुकामी खवातीन ने फूलों से सजे बदकमा के इतराफ घूमकर गीत गाते हुए एक दूसरे को इस फेस्टिवल की मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद सरकारी तौर पर ये तकारीब हर साल मुनक्किद करने का मुकामी खवातीन ने इजहार किया। इस मौके पर दही कमेटी के सदर डॉक्टर लिम्बाद्री ने खिताब करते हुए कहा कि दही कमेटी के जेर निगरानी में तमाम तरीन इंतजामात करने वाले हर एक को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में MPTC के श्वेता रामाकृष्णा, PHCS सोसाइटी डायरेक्टर सतीश रेड्डी, कमेटी के मेंबरान, दही कमेटी, मौजे के नौजवान व दीगर ने शिरकत की। बालकुंडा के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में बदकमा तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। बालकुंडा के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में बदकमा तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मंडल स्पेशल ऑफिसर सत्यनारायण, मंडल के अहदेदार संतोष कुमार, सरपंच श्रीमती सुनीता निहारी व कॉलेज के प्रिंसिपल अरगुल चिन्नैया, मुकामी खवातीन व तुलबात ने फूलों का त्यौहार बदकमा तकरीब में शिरकत करके कामयाब बनाया। जिले कामरेड्डी पेटलम में वाक़ MPP ऑफिस में अवामी नुमाइंदों के हाथों मुस्तहिक़ खवातीन में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स की फराहमी अमल में लाई गई। जिले कामरेड्डी पेटलम में वाक़ MPP ऑफिस में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 5 कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स की MPP कविता विजय व ZPTC श्रीनिवास रेड्डी के हाथों मुस्तहिक़ीन खवातीन में तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर MPP लच्ची रेड्डी, सरपंच विजया श्रीनिवास रेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन शपदम रेड्डी, कॉर्पोरेशन मेंबर रहमान मौजूद थे। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ीन खवातीन को कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत 1,116 रुपए देने का इजहार किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते आज के अहम सिरखे पर। ज़राई मैदान में रियासत ने तरक्की व कामयाबी की कायम की मिसालें। क़ब्ल में मुत्तहदा रियासत में हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों के सबब हुई बरक़ी की क़िल्लत। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने वर्नी मंडल के श्रीनगर गाँव का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का किया आगाज।
CM KCR की कारकर्दगी से मुतासिर होकर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों की TRS में शमूलियत हासिल। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर महकमे बल्दी की जानिब से खुसूसी इंतजामात अमल में लाए जाए। डिप्टी मेयर इदरीस खान व कॉरपोरेटर्स ने इंचार्ज बल्दी कमिश्नर व एडिशनल कलेक्टर से मुलाकात करते हुए की नुमाइंदगी। मंडल सतह में मुसलमानों की नुमाइंदगी व मसाइल के हल के लिए नंदीपेट मुस्लिम कमेटी के सालाना इंतखाबात मुत्तहिद होकर ही मसाइल को हल किया जा सकता है। नौ मुंतखब सदर व अरकान का पैगाम। ख़वातीन की मुख्तलिफ शोबे हयात में खिदमात की सताइश के लिए मुनक़िद करदा स्त्री शक्ति एवार्ड तक़रीब बाहैसियत मेहमान ख़ुसूसी मुत्तहिदा ज़िला MLC के कविता ने की शिरकत। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।